PM Modi's contribution to the Ram Mandir movement. During the Ram Janmabhoomi movement, Narendra Modi delivered many powerful speeches. One was titled Lok Adalat Ma Ayodhya. We have a 24-second clip from that impactful speech. We have the audio. Let's try and play that out. जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। The Ram Mandir shall be built at the site of Ram Janmabhoomi, only the place where Ram was born. No power in the world can stop the Ram temple from being built. This Narendra Modi had said during the Lok Adalat Mein Ayodhya event. And this is that clip that we just played out. The next stop, viewers, of Prime Minister Modi today in temple town Ram Ki Nagari, Ayodhya, is the Maharshi Valmiki International Airport. The Valmiki International Airport is modelled after the upcoming Sri Ram Mandir. Ayodhya Airport's terminal buildings facade, and let's play out pictures of the terminal building. We have that also. The state-of-the-art airport phase 1 has come up at a cost of around 1500 crore, 1450 crores to be precise, and the terminal covers 6,500 square meters, and the aim is that it would cater to needs of 10 lakh passengers annually. Let's bring in our colleague Tejshri back. Tejshri, you've been on the ground speaking to people. What is the sense that you are picking up as far as these two main development projects are concerned? The Ayodhya Dham, the new revamp railway station, and the newly built international airport. That it is a very good way for the connectivity, the best possible way, because earlier they had if it comes to flight, then they had to take a flight from Lucknow, because there was no such kind of airport, in fact no international airport from where they could have taken flight or where they could have landed. So it has made it will be now very much convenient for them to come to Ayodhya to offer prayers as a devotee to Lord Ram. So that is why this international airport of Ayodhya, which is named as Valmiki Airport, from inside which we have in fact reported also, and we have shown the pictures also, that what kind of facilities this particular Valmiki Airport of Ayodhya will be giving. And in fact this airport will be special and unique in itself, because it will also be depicting the story, the life history of Lord Ram. Several artists, several artisans, several laborers, several in fact painters came from different parts of the country, and most of the workers were from the states like Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, and in fact they were very much they take pride in saying, and they in fact they also feel proud about that they were able to contribute in this historic movement. And in fact we also spoke to the artists who are from Bihar, and in fact paintings of the Madhubani paintings of Bihar were also portrayed there at on the walls of airport. And in a short while from now, Prime Minister will be going to the airport. We saw the pictures of Prime Minister along with Chief Minister Yogi Adityanath at the Ayodhya Dham railway station, along with Railway Minister Ashwini Vaishnav. But now Prime Minister will be just holding again the same roadshow from this particular route, and then will be heading towards the Valmiki Airport of Ayodhya. And of course it is in fact a big gift to the people of Ayodhya, not only Ayodhya but also Vinod Mishra, who's standing outside the Maharshi Valmiki International Airport.
करेंगे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट का। उसके बाद इस जनसभा पहुंचेंगे कि ठीक 1 बजे का वक्त है जब पीएम यहाँ पहुंचेंगे। आपको तस्वीरें एक बार दिखाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो दावा किया गया है, कहा जा रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा पब्लिक जो होगी वो यहाँ पे मौजूद होगी। और ये जो तस्वीरें हैं तमाम, ये इस बात को दिखा भी रही कि एक तरह से एक जनसमूह आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उमड़ा हुआ जनसमूह यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। 4 बड़े बड़े हैंगर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। और करीब जो कुर्सियां हैं वो 1.5 लाख से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई ताकि लोग बैठ सके। उस पूरी सारी कुर्सियां यहाँ भरी हुई हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जो संख्या है 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। चूँकि इसी जनसभा में पीएम को जो है 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना एक सौगात है जो अयोध्या के जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को पीएम आज देंगे। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वो पीएम मोदी को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार सुबह से ही, जब से हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों के आने का सिलसिला से जो है वो सुबह से चल रहा है और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि पीएम जो है ये इसी जनसभा में जो पब्लिक कार्यक्रम है उसमें करीब 17,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अयोध्या वासियों के लिए होगी। तो केवल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि बाकी विकास योजनाएं जो अयोध्या में चल रही है उसको भी कंसिडर किया जाएगा इन जो आज इनोवेशन जिसका आज पीएम करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि पूरे अयोध्या की तस्वीर बदलनी है, एक नई अयोध्या, एक नव्य दिव्य भव्य अयोध्या जो है वो कंसेप्ट है जो मंच बना हुआ है। उस मंच पर भी बाकायदा ये लिखा गया है कि दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या, यानी कि नई अयोध्या की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी वो साकार रूप ले रही है। उसमें जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं, जो अभी पाइपलाइन में है, उसको आगे करने के लिए फंडिंग की जो जरूरत है वो भी यहाँ पे किया जाएगा ताकि जो योजनाएं हो तेज गति से चले। राम मंदिर के निर्माण से पहले तमाम जो बाकी योजनाएं हैं वो भी धरातल पर, जमीन पर उतर जाए। तो ये कोशिश जरूर है सरकार की तरफ से और इसीलिए पीएम जो है यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई थी कि पीएम कुछ ही मिनटों में जो है वो वापस एयरपोर्ट पहुँचेंगे और जो एयरपोर्ट की जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मंच पर आएंगे और उसके बाद यह पब्लिक जो एड्रेस का कार्यक्रम है उसे करेंगे। 1 घंटे का कुल कार्यक्रम है ये, जिसमें पीएम लोगों से बात करेंगे और अपनी बातों को इनके सामने रखेंगे। लगातार अयोध्या को लेकर बात हो रही थी, कहा जाता है कि पीएम जो है अयोध्या को लेकर कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं और जिस तरह से पीएम का ये तीसरा दौरा भी होगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, तो वो कई मायनों में खास होने जा रहा है। हमने देखा किस तस्वीरें कि पीएम यहाँ से निकले एयरपोर्ट से तो बाकायदा रोड शो करते हुए एयरपोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने रेलवे की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका इनॉग्रेशन किया, अमृत भारत या ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वहाँ पे बच्चों से मुलाकात की। वापस लौट रहे हैं निषाद राज के, हम शायद वो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका काफिला एयरपोर्ट पहुँचेगा तो एक बार फिर एयरपोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद वो मंच पर आएंगे। एक बार आपने वीडियो से कहेंगे कि वो आपको तस्वीरें दिखा पाएँ कि कैसे कितने बड़े भव्य जो है वो मंच यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पे पीएम का इंतजार किया जा रहा है और ताकि जो मंत्री हैं कैबिनेट के वो सब अब मंच पर मौजूद है। एक बार तस्वीरें मंच की दिखाते हैं हम आपको कि कैसे जो सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इंतजार बस प्रधानमंत्री का हो रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे और वो जो तमाम विकास योजनाएं हैं उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे यहाँ से। तो ये आप देखिए मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे योगी सरकार के कई सारे मंत्री जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कृषि मंत्री दिखाई दे रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम चूँकि उनके साथी सीएम के साथ हैं तो कुछ देर में वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। बस इंतजार प्रधानमंत्री के आगमन का है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो आधिकारिक रूप से ये कार्यक्रम होगा और जो बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए हैं उनका भी एक लंबा इंतजार कर रहे हैं। सुबह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचना शुरू हुए थे, अभी भी आने का सिलसिला जारी है। जो दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से, जो तैयारियां की गई थी कि बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, यहाँ तक लेके आया जाएगा ताकि लोग प्रधानमंत्री को सुन सके। बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, प्रधानमंत्री का बड़ा लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी आने वाले हैं पीएम प्रधानमंत्री।